Hello students, I Shakti Kumar, lecturer chemistry, Government SRML Model Higher Secondary School, Jammu. Today, going to discuss about matter. What is matter? What are the classification of matter? And we'll talk about element, compounds, then mixtures, then difference between compound and a mixture. And after that, we will study about the properties of matter and their measurements. And thereafter, we will talk about uncertainty in measurements and significant figure. So, let's start the topic. Before starting the new topic, let's have a recap what we have studied yesterday. Here is a mind map. In this mind map, I will show you the different uses of chemistry. First of all, we have talked about the introduction of chemistry, जिसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और आपको पता है व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज अ branch of science that deals with the study of composition, structure, and properties of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions. And what are the importance of chemistry and what is the scope of chemistry? First of all, to earn by working in school, colleges, and universities in their labs. And second is to get into the field of medicine and pharmacy. And thereafter, to study closely the natural world. And next is it is an intellectual discipline. Science produces new materials and new researches are being made. Thus, it is a growing field. And as technology, in chemistry labs, new tests are being done in test tubes, and those new materials produced in chemistry labs become our daily use materials. Thereafter, in daily life, where we use numerous things like plastic materials, synthetic material, soaps, detergents, deos, etc. And now about world problems. There are big problems in today's world, and that are food and environment, which can be well tackled with the help of chemistry. जैसे हमने कल पढ़ा था कि with the help of chemistry we get different fertilizers, then insecticides, pesticides in order to increase the production and test the adulterations. Then in case of environment, we can protect it, soil, water, air, sea, CFC, etc. And then comfort. In comfort, synthetic fiber, building material, metal supply, domestic articles, these all are covered in comfort zone. Then when we talk about the health, we get drugs like life-saving drugs, analgesic, antibiotics, anesthetics for surgery, tranquilizers and disinfectants. And then we have talked about transport. Transport में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी प्रोडक्ट्स कवर करता है. उसके बाद एनर्जी. In the field of energy, we get hydrogen fuel, nuclear energy, atomic energy,
and new materials are being produced on daily basis like synthetic blood or superconductors, which are very useful. And then in case of war, we get explosives like nuclear or atomic bombs. Then we have talked about the problems caused by chemistry in detail. So now let's move to our new topic, that is matter. Anything that has mass and occupies space is known as matter. Matter cannot be separated by physical means. जो मैटर जो है फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं हो सकती, दैट मैटर इज अ प्योर सब्सटेंस, एंड that can be separated by physical means is known as a mixture. So pure substance क्या है? Pure substance can be broken down by ordinary chemical means. क्या क्या? कोई भी ordinary chemical means से उनको break किया जा सकता है, and cannot be broken down by ordinary chemical means. They are known as elements. जो केमिकल मीन से सेपरेट हो सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स. और जो केमिकल मीन से ब्रेक नहीं हो सकते उनको बोलते हैं एलिमेंट्स. कंपाउंड्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल पहले एलिमेंट्स लेते हैं. व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस. दीज आर ऑल एलिमेंट्स. चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो गोल्ड है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, हीलियम, दीज आर एलिमेंट्स. बट जो मिक्सचर है लाइक ग्लूकोज, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, these are known as compounds. But compounds can be broken down by ordinary chemical means, and elements cannot be broken by ordinary chemical means. Now, matter का दूसरा aspect है, matter can be separated by physical means. जो फिजिकल मीन से ही सेपरेट हो जाएं वो कौन से मैटर हैं? उनको बोलते हैं मिक्सचर्स. मिक्सचर जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के भी हो सकते हैं और यूनिफॉर्म कंपोजिशन के हो सकते हैं. अगर वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के मिक्सचर हैं तो उनको हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. कंपोजिशन इनकी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है. जैसे ग्रेनाइट हो गया, पिकल हो गया, नूडल सूप हो गया, कुछ भी ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है. और होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? जिनकी कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट सेम हो, लाइक सी वाटर सेम है थ्रू आउट, एयर सेम है, ब्रोंज सेम है, मिक्सचर है लेकिन सेम है, ब्रास मिक्सचर है लेकिन सेम है. तो हमने मैटर में पढ़ा, मैटर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं मिक्सचर. प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं उनको फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं किया जा सकता. जैसे कंपाउंड्स को फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन केमिकल मीन से उनको सेपरेट किया जा सकता है. जैसे ग्लूकोज है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको अलग अलग किया जा सकता है. वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जा सकता है. ग्लूकोज से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को सेपरेट किया जा सकता है. कार्बन से कार्बन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जा सकता है बाय सम केमिकल मीन्स. लेकिन एलिमेंट्स जो हैं इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता. ये प्योर हैं, इनको और ज़्यादा सेपरेट नहीं किया जा सकता. ऐसे ही मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. कैसे? कुछ मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर जो हैं वो उनको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, लाइक ग्रेनाइट, पिकल, नूडल सूप वगैरह. और होमोजीनियस मिक्सचर जो हैं उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है, जैसे सी वाटर, एयर, ब्रोंज और ब्रास. नेक्स्ट टॉपिक इज मैटर. जैसे मैंने आपको बताया, अब नोट कर लो यहाँ, मैटर एवरीथिंग दैट हैज मास.
जिसका मास होगा और जो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, वो क्या है, दैट इज मैटर। और देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। 3 स्टेट्स हैं मैटर। और मैटर कैन बी मिक्सचर, हमने पीछे पढ़ा है। मिक्सचर क्या होता है? सब्सटेंस विच हैव बीन कंबाइंड सच दैट ईच सब्सटेंस रिटेन्स इट्स ओन केमिकल आइडेंटिटी। हर सब्सटेंस अपनी केमिकल आइडेंटिटी जो है वो रिटेन करता है। एंड मे बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस, और उसको अलग भी किया जा सकता है प्योर सब्सटेंसेस में, तो इनको बोलते हैं मिक्सचर। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, द सेम कंपोजिशन होती है थ्रू आउट एंड स्टे कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ फेज। और जब उनका फेज चेंज होता है तो भी कांस्टेंट रहते हैं। गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। जैसे वाटर है, वाटर एज ए सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। एज सॉलिड आइस, एज लिक्विड वाटर, और एज गैस जो भी मॉइस्चर वगैरह। ठीक है, तो लेकिन वो अपनी जो है कंपोजिशन जो है वो उसको क्या करता है, रिटेन करता है। वो कांस्टेंट रहती है, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है किसी भी स्टेट में। नेक्स्ट इज मिक्सचर। मिक्सचर का मैंने आपको बताया 2 टाइप का होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, तो वो होमोजीनियस है। कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। कंपोजिशन जो है कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो अलग नहीं किए जा सकते। एंड कंपोजिशन कैन बी वेरीड, कंपोजिशन इसमें वेरी हो सकती है। होमोजीनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशंस। लेकिन हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? नॉट द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहती, बट कंपोनेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल। और इनमें जो है कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है जी। और कंपोजिशन कैन बी वेरीड, और मिक्सचर्स में जो कंपोजिशन है वो वेरी भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। एक मिक्सचर से दूसरे मिक्सचर की कंपोजिशन जो है वो अलग हो सकती है। नो नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मैंने आपको बताया एलिमेंट्स जो हैं प्योर सब्सटेंस हैं, कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस हैं। तो एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, देयर आर 118 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। और कंपाउंड्स कंटेन 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलकर क्या बनते हैं? कंपाउंड्स। एंड कंबाइंड इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, और जब वो डेफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन हो तो वो क्या बन जाते हैं? कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे कंपाउंड हैं। लेकिन एलिमेंट्स हो गए हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स metals like solids except liquid mercury, good conductor of heat and electricity। एंड एलिमेंट्स में क्या होते हैं? मेटलाइड्स भी होते हैं, कुछ मेटल्स भी हैं एलिमेंट्स में। मेटल्स होते हैं, मेटलाइड्स होते हैं और नॉन मेटल्स, 3 चीज़ें होती हैं एलिमेंट्स में। ठीक है जी। तो मेटल्स क्या है? मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं, और एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के बाकी सारे मेटल जो हैं वो सॉलिड है। और गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही जो मेटालाइट्स होते हैं मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मे कंडक्ट, ठीक है, और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, लेकिन हीट के लिए पुअर कंडक्टर्स हैं। ऐसे नॉन मेटल्स क्या हैं? सम गैसेस हैं, सम सॉलिड्स हैं। कुछ नॉन मेटल जो हैं गैसेस होती हैं, कुछ सॉलिड्स होती हैं। और वन लिक्विड, एक जो है नॉन मेटल वो लिक्विड है, वो कौन है? ब्रोमीन। जैसे मेटल में एक लिक्विड है कौन? मरकरी। ऐसे ही नॉन मेटल में लिक्विड कौन है? ब्रोमीन। दिस इज इंपॉर्टेंट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो
ऐसे ही कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स में क्या क्या आता है, एसिड्स आते हैं, फिर बेसिस आते हैं, फिर आते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस। ठीक है जी। एसिड्स क्या है, विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, जो ब्लू को लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और बेसिस क्या है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न करते हैं। और न्यूट्रल सब्सटेंसेस नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, न्यूट्रल सब्सटेंसेस में लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता। ऐसे ही कुछ एसआई के बेस यूनिट्स हम देखते हैं, फिर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेंथ का जो यूनिट है, क्वांटिटी है हमारी लेंथ, यूनिट का नाम है इसका मीटर और इसका सिंबल है एम। ऐसे ही मास, नेम किलोग्राम, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में और सिंबल है इसका केजी। टाइम, बेस यूनिट सेकंड, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो है उसको केल्विन में देखते हैं और यूनिट है के। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करते हैं, उसको करते हैं मोल में और उसका सिंबल है MOL। नो नेक्स्ट इज डिराइव्ड यूनिट्स हैं, कुछ डिराइव्ड यूनिट, वो बेसिक यूनिट्स थे, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे एरिया आपको पता है स्क्वायर्स में होता है, स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में होता है, स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड, स्पीड और वेलोसिटी के सेम यूनिट दैट इज मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का भी पता है आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ मीटर पर मीटर होता है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, इनको हम डिटेल में आगे चैप्टर्स में पढ़ते रहेंगे।